So hi once again. This is I welcome you all. This is once again your educator Anup Kumar Singh, and this is your very own channel, that is Youth and Truth Classes. This is a kind of a small information about me, right? If you have any query, any doubt, you can message me or you can simply mail me up. A teacher of a biology and social science, also the UPSC and the PCS aspirant, because I am continuing these lessons not only for the school students but also for the PCS and the UPSC aspirant across all over the India who wants to be the part of the civil service. Clear pre in 2017 and WBCS, and teaching and learning is my passion. So after I think a very long day, I'm going to make this video. Sorry for the delay, boys and girls, because we all know that this is the corona period is going on, and due to this coronavirus, I got stuck. But right now I am in my home, and will try my level best to update you, to give information, to give the sharing, to share the knowledge and the resource which I have, and will try to upload the video on the regular interval basis. So without using a single second, let's start today's lesson and let's go for it. Okay, so today I hope that this video is visible. So today I am and today this video is visible and audible to all of you. So today we are going to cover the class 9 geography lesson 2, that is the physical features of India. Okay, so we will going to cover up in both the languages, that is the English and Hindi. Now the main reason is to frame this lesson, to make this video over here, because these things are very very important if you are preparing for any of the examination, for the your school examination or for any of the UPSC, PCS or state examination. It this chapter has its weight, this chapter has a quantum, and it consists almost 10 marks or 5 marks from any of the exam. So we will cover up the detail today. This is the first part. I will upload the latter parts in the next upcoming days. Okay, so keep loving, keep watching and keep sharing. So this chapter, let me, so you can see that here I have put a map over here. So this is the Indian map, we all know. So this Indian map help us to guide the things which we will cover in this chapter here. Just in order to put this map over here, to give you a brief, a kind of a glimpse that what is there in this chapter and which theory, which टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डील विथ. ओके, क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बताता रहूँगा. और बस एक छोटी सी झलक है, उसके बाद हम उसी चीज़ को डिटेल में देखेंगे जब ये चैप्टर को हम लोग फर्दर पढ़ते रहेंगे. और मे बी इन केस दैट इफ़ यू वांट टू परस्यू हायर स्टडीज़ इन द ह्यूमैनिटीज़, आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ लेके ही पढ़ना चाहेंगे, तो ये चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आपको शायद क्लास 11 की NCERT CBSE में फिर से पढ़ने को मिलेगी. तो अभी यहाँ जान लीजिए, उस वक्त आपको कम मेहनत करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अकॉर्डिंग टू द CBSE NCERT बुक. So first line is given that India has a vast stretched plain lands, rugged terrain, with the valleys and the mountains, deserts, plateaus and islands. For this, India is called subcontinent. यानी इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है. दिस इज द ओनली कंट्री which has or which can be termed as a subcontinent. The reason is very that because what are the necessary features, essential features required to be a continent, to establish any region, geographical region as a continent, we can find everything in the India. चलो कैसे देखते हैं. दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ ग्लिम्स, मैंने बता रहा हूँ, झलक है ना, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले. सो इफ यू टॉक अबाउट द वास्ट स्ट्रेच्ड पैनलैंड्स, rugged mountains, icy covered mountains. So if you talk about the icy covered mountains, we have a icy covered mountains from this region, from in the northern side. Okay, in the northern side, which stretches up to the नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, यहाँ तक फैले हुए हैं. ओके, तो यानी इस आइसी कवर्ड माउंटेन्स है. इसके अलावा वी हैव द इन नाउ दीज माउंटेन्स आर नथिंग बट दीज माउंटेन्स आर इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेट हिमालयस. राइट, ये आपको पता होना चाहिए, पढ़ते आ रहे हो आप. तो ये कुछ और नहीं, बस ये आपका ग्रेट हिमालयस के फॉर्म में है. इसके अलावा वी हैव द हिमाचल हिमालयस. राइट, वी हैव द हिमाचल हिमालयस इन दिस रीजन जस्ट बिलो दिस. राइट, यहाँ तक फैले हुए हिमाचल हिमालयस के अलावा. इसके अलावा हमारे यहाँ पे आउटर हिमालयस हैं जिसमें दोआब फॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसके नीचे वाला जो रीजन है, देहरादून है ना, हरिद्वार वाले इलाके. तो ये सारी चीज़ें आपको, माउंटेन्स की बात करें तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है. इसके अलावा वी हैव द डिफरेंट नाउ इफ आई टॉक्ट अबाउट दिस प्लेन लैंड्स. ओके,
तो ठीक इसके नीचे से, यानी ये जो आउटर हिमालय है, नीचे वाला हिमालय, इसके नीचे से यहाँ से हमारा एक एक बहुत ही बड़ा प्लेन लैंड्स फैला हुआ है. मैं ड्यू टू द कर्सर आई कांट एबल टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर थिंग, बट वो पूरा दूर तक फैला हुआ है. ये एरिया थोड़ा और कवर होगा, यहाँ तक होगा. तो ये जो है इसके इसके वाला ये कौन सा है? दीज आर द प्लेन्स लैंड, दीज आर द ग्रेट प्लेन लैंड विच इज नथिंग बट द नॉर्दर्न प्लेन, जिसको द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स वी यूज टू कॉल इट, हम उसको टर्म करते हैं. तो नॉर्दर्न प्लेन वाले इलाका भी है. उसके अलावा ये हमारा जो इलाका है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला कौन सा इलाका है? लेट मी गिव यू द हिंट. दिस इज द oldest land mass, this is the oldest land mass of India, and this is nothing but this is a, wait, I need to buy that जो पेन टैब होता है. दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट? दिस इज द पेनिनसुलर इंडिया. ये कौन क्या है? ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है. जी हाँ, मैंने यहाँ से लिया है. क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर ये तो डेजर्ट इलाका आ गया. सही है, बट ये जो अरावली हिल्स है, यानी सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इट ऑल्सो कंसिस्ट फ्रॉम हियर टू अप टू दिस, यानी यहाँ तक रीजन. ये जो सारे इलाके हैं ना, ये वाला सारा इलाका, यानी इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर वाला सारा इलाका, ये कौन सा है? वो पेनिनसुलर इंडिया है ना, पेनिनसुलर इंडिया है. प्लस वी हैव सम डेजर्ट्स ओवर हियर, जो आपको पता है डेजर्ट्स हैं. प्लस ये देखो, ये वाला जो हमारा इलाका स्टार्ट हो रहा है, ये जो लास्ट वी शेप है, इट इज ऑल्सो वेल नोन टू यू. दीज आर नथिंग बट दीज आर व्हाट? दीज आर द कोस्टल प्लेन्स. दीज आर द कोस्टल प्लेन्स. ये क्या है? कोस्टल प्लेन्स से तटीय इलाके हैं, राइट. प्लस इफ आई टॉक अबाउट द सम आइलैंड्स, ओके, अगर मैं आइलैंड्स की बात करूँ तो देखो ये हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स के फॉर्म में है यहाँ पे, है ना. दीज आर द थिंग्स, ये सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, अंडमान, लक्षद्वीप, निकोबार, ये सब दीज आर व्हाट? दीज आर नथिंग बट द आइलैंड्स. प्लस इफ आई टॉक अबाउट द, हमने ड्राइएस्ट प्लेस की बात की, डेजर्ट्स की बात की, बट इफ आई टॉक अबाउट द मोस्ट रेनी प्लेस, रेनिएस्ट प्लेस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सो वी हैव द रेनिएस्ट प्लेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, दैट इज द इन द हियर मेघालय. मेघालय का मतलब ही होता है द लैंड ऑफ क्लाउड्स, मेघा, है ना. तो मेघालय में जो होता है वहाँ पे वी हैव द मोस्ट रेनियस प्लेस. एक्चुअली द थिंग इज दैट, क्यों वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है? लेट मी टेल यू. देयर इज द कंसेप्ट, एंड लुक, दिस इज द काइंड ऑफ अ कंसेप्ट बिल्डिंग stage is going on. We are going to read about all these things in a very detailed way in this chapter if you move further. Right now I am just, as I said, right now I am just giving you the glimpse. मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आगे पढ़ना है, हिमालय किस तरीके से फॉर्म हुई, इंडिया किस तरीके से फॉर्म हुआ. वी विल ऑल लर्न दैट इन दिस चैप्टर, बट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि क्यों हमारा इंडिया इतना ग्रेट है, एंड व्हाट आर द थिंग्स विच इज इंक्लूडेड, बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द फिजिकल फीचर्स. So whatever the necessary features is required to be a continent, we have all this. So coming back, I am talking about this, I am talking about this Meghalaya, कि क्यों वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है. The reason is that the Meghalaya is surrounded by the three hills. Before, one thing, Meghalaya was the part of the Assam, but in the year 1967, please cross check with the Google, I'm not remembering the year right now. So in the year 1967 or 65, it was separated from the Assam and it becomes a new state, Meghalaya, जिसको बोला गया लैंड ऑफ क्लाउड्स. द थिंग इज दैट व्हाई इट कंसिस्ट, व्हाई इट रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बिकॉज मेघालय इज सराउंडेड बाय द थ्री बिग हिल्स, जिसका नाम आप सबको पता होगा. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. Meghalaya is consist of Meghalaya. In Meghalaya we can see the three major hills, that is the Garo, this is Khasi, 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 and one hills is there, that is the Jayantiya, okay. So this Garo, Khasi, Jayanti hills are there. So these hills, so क्या होता है, कोई भी जो क्लाउड आती है ना, कोई भी जो क्लाउड आती है वो क्या होता है, इन तीनों हिल्स के बीच में आके फंस जाती है, राइट. इन तीनों हिल्स के बीच में फंस जाती है, और एज ए रिजल्ट जितने जो बारिश होती है, जब इन तीनों बीच में आके फंस जाती है, टकरा जाती है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है. तो मेघालय वी हैव द प्लेस, दैट इज़ द
two that is the Mawsynram and Cherrapunji, right? These two places, and the distance between the two places is 25-26 किलोमीटर के दोनों के बीच दूरी है. तो इस इलाके में दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिश वाले इलाके भी हैं. हमारे पास हिमालयस इन द फॉर्म ऑफ रग्ड माउंटेन्स, आइसी कवर्ड माउंटेन्स भी है. आउटर हिमालयस के फॉर्म में हिमाचल माउंटेन्स में दोआब रीजन्स भी हैं. And now we have a peninsular regions, we have a coastal, we have a islands, we have the most rainiest place, we have the deserts. So it means what are the necessary features, what are the essential features required to be a continent? We all have those. That's why India is called what? India is called the subcontinent. So I hope up to in this slide you have understood everything and everything is clear to you. Now let's move to the next slide. So these are the first thing introduction given in your book, और जिसको मैंने आपको एक मैप के जरिए बता दिया. अब आगे देखते हैं, चलिए. So in India we can also see that there is a different type of rocks such as the hard rocks, right? Hard rocks like the marbles, granite, that uh, marbles, granite, sedimentary rocks. All these rocks we have, we have a storage. Soft rock are also found in the form of soapstone which is from इससे आपके talcum powder बनता है. So might be girls are quite habituated with that and they know very well what is talcum. Okay, so ये सारी चीज़ें इंडिया में मिलती है. Now variation in color of soil, because soil are found from different type of rocks. India is a landmass during different geological periods which has influenced its relief, modified and created through weathering, erosion and deposition in its present form. ओके यानी ये जो इंडिया का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है. इंडिया का जो लैंडमास बना है वो बहुत पुराना है, उसका बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है. वो अचानक से नहीं बन पाया. जो एक थ्योरी है जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं, प्लेट थ्योरी, which we going to read in this chapter. So we will learn on this. So we have the rocks, okay, we have the greatest oldest landmass, that is the peninsula, and we will and from this line we have understood that India has gradually formed through the बीच जोग्राफिकल चेंजेस है, जियोलॉजिकल पीरियड्स, बहुत सारे जियोलॉजिकल चेंज आए जिसमें वेदरिंग आई, इरोशन आए, डिपोजिशन आए, फॉर्म आया. अब कोई मुझे बताएगा वेदरिंग, ये वेदरिंग आपको मैंने क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा, दैट वेदरिंग इज नथिंग बट द disintegration of the bigger rocks into the small fragments, into the small rocks are known as the weathering. Now ये weathering बताओ, ये weathering, अब weathering के बारे में बता दूं, ये आपको पता होना चाहिए that this weathering is caused due to the several reasons. Some reasons are, एक तो reasons है आपका physical, एक reasons क्या है आपका physical, एक reason है आपका, एक और reason क्या हो सकता है, एक होता है केमिकल, है ना. अगर आपको पता नहीं है तो जान लीजिए ये वेदरिंग क्यों होती है. एक तो मैंने वेदरिंग तो आप वो डेफिनेशन बता सकते हो, डेट द disintegration of the bigger rocks into smaller rocks, right, into small fragments are known as weathering. But this weathering have its certain causes, reasons, that is the physical, chemical, and the last one is the biological. सो अब इनके बारे में मैं आपको बता दूं, जस्ट गिव स्मॉल इन्फॉर्मेशन, कि आखिर इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ वो तो जियोलॉजिकल चेंजेस आए, बहुत सारा इसका जोग्राफिकल चेंजेस आए, उसके बाद हुआ. प्लस देखो एक वेदरिंग भी दिया, इरोशन भी दिया. इरोशन तो आप तो समझते हो ना, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज गेटिंग वॉश्ड अवे बाय एनी फिजिकल मीन्स, बाय एनी एक्सटर्नल मीन्स, राइट, एंड इट गेटिंग अ size of the any planes or some different things. Deposition, it is all stored, कि कहीं से कुछ कलेक्ट हो रही है, एक जगह डिपोजिट हो रही है. बट ये वेदरिंग क्या है, वेदरिंग के तीन फीचर्स होते हैं, तीन चीज से वेदरिंग आती है, फिजिकल, chemical and biological. So whenever I talk about the physical, it means the physical weathering is nothing when the disintegration of rocks is occurred. I repeat, when the disintegration of rock, यानी rocks का जब disintegration हो रहा है वो कब हो रहा है, अगर उस पे एक्सटर्नल टेम्परेचर या प्रेशर लगाया जा रहा है. अगर उस पर एक्सटर्नल या टेम्परेचर प्रेशर जा रहा है तो उसका और उससे वेदरिंग होती है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज, यानी वो फिजिकल चेंज की वजह से वेदरिंग हो रही है. केमिकल क्या है, केमिकल होता है इफ द वेदरिंग इज ऑकरिंग by the air or by the water. If the weathering is occurring by the air or water, so in that case we termed weathering as a chemical change. Biological change, if the weathering, if the rocking, the disintegration of rocks or stone is occurring by the plants, by some microorganisms.
सो उस चीज़ में हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल। तो अब देखो, सो दीज आर द थिंग्स यू नो हाउ विद द इंडिया चेंजेस, एंड वी हैव सीन दैट द इंडिया का जो हिस्ट्री है बहुत पुराना है, और वी हैव द हार्ड रॉक एंड द सॉफ्ट रॉक ऑल्सो। तो अब देखो नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ। मैंने बोला देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये वाला these are the region is very you know famous, especially from the Odisha to here, right? This is the regions, उड़ीसा इस साइड है, माफ करना, ये जो वाला जो रीजन है इस साइड में बहुत फेमस है फॉर व्हाट, फॉर इट्स सॉइल। यहाँ पे क्या मिलता है आपका, ब्लैक सॉइल मिलता है। what kind of soil, black soil. So similar we have several regions of, you know, we are having this regions as the alluvial soils, बहुत सारे लंबे तक फैला हुआ है। तो यानी we have the different regions, different parts where we can see the different soils. That's what I have written here. Different types, variation of color of soil, and the soil are found, plus their color is also different. We have a red soil, right? We have the black soil, laterite soil, that is the mountainous soil. ये वाले region जो हो जाएंगे हमारे, ये वाले जो region हो जाएंगे mountainous soil. So we have the different texture of the soil, we have the different types of rocks, plus we have the you know different regions for those allocated particular soils. And we, and as I said that कहाँ गया, दैट या इंडिया हैज अ लैंड मास, इंडिया इज अ लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स, जियोलॉजिकल पीरियड्स यानी बहुत लंबे यू नो जोग्राफिकल चेंज आए हैं, फिर ये इंडिया का बना है। वो कैसे बना है मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आगे मैं पढ़ा दूंगा। एक्चुअली क्या होता है, लेट मी क्लियर दिस, जस्ट होल्ड, या लेट मी क्लियर दिस। एक्चुअली क्या होता है, ये जो हमारा प्लेट है ना, ये प्लेट, यानी ये जो आप प्लेट देख रहे हो ये सारा, दिस इज नथिंग बट दिस इज द इंडियन प्लेट। ये एक इंडियन प्लेट है जो क्या हुई थी, जो आफ्टर सर्टेन मिलियन ऑफ ईयर्स एगो में यू नो ये मूव करते करते आगे मूव करते गई, आगे मूव करते गई, आगे मूव करते गई, एंड लास्टली यू नो इट कोलाइड्स विद द यूरेशियन प्लेट। ये हमारा इंडियन प्लेट है, और इसके तरफ क्या है, इसे एक यूरेशियन प्लेट है जो अभी भी मूव कर रही है। पर क्या हुआ था मैं आपको बता दे रहा हूँ, और हम लोग आप पढ़ेंगे आगे क्या होता है, दैट इंडियन प्लेट्स इज कोलाइड्स व्हेन द इंडियन प्लेट्स आगे मूव करती गई, एंड इट अल्टीमेटली इट कोलाइड्स विद द यूरेशियन प्लेट। एज ए रिजल्ट, बिकॉज ऑफ दिस कोलिशन, यू नो बिकॉज ऑफ दिस कोलिशन एंड प्रेशर दिस माउंटेन रेंजेस हैज बीन फॉर्म्ड। ये माउंटेन रेंज फॉर्म्ड हो गए, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, जिसको हम लोगों ने बोला हिमालय। और उसके बाद से क्या हुआ, एज सुन एज द हिमालयस फॉर्म्ड, यू नो द रिवर्स विच आर फ्लोइंग फ्रॉम द आउटर, फ्रॉम द अपर साइड, दैट इज जो पहाड़ों से, हिमालय से जो नदियाँ जो निकलना शुरू हुई, यू नो, सो दे यूज टू ब्रिंग द सेडिमेंट्स, as we all know that whenever the river flows, the water body flows, they used to bring a lot of sediments along with them. तो ऊपर से जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव हुआ, कोलाइड्स हुआ, दोनों के कोलाइड्स के वजह से यू नो दोनों के टक्कर की वजह से एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट हुआ, और उससे फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स क्रिएट हो गई। और उस क्रिएट से व्हेन द रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम द अपर साइड, व्हेन द रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम द अपर साइड, दे यूज्ड टू यू नो दे बॉट अ लॉट ऑफ व्हाट, दे बॉट अ लॉट ऑफ सेडिमेंट्स। और उसके वजह से यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ पे एक बिग वैली बन गई, यहाँ पे एक बिग वैली बन गई, यहाँ पे एक बिग वैली बन गई। ओके, जो चीज़ आगे आपको पढ़नी है, जो बिग वैली बन गई, और उसी के, और इस तरीके से, और उस तरीके से हमारा ये वाला जो एक पार्ट हो गया, ये क्या बन गया, ये हो गया हमारा पेनिनसुलर इंडिया, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास इन द अर्थ है ना। ये क्या बन गया, ये बन गया पेनिनसुलर इंडिया। सो दिस इज हाउ आवर इंडिया क्रिएटेड, यानी व्हेन द what, this plate, Indian plates collides with the Eurasian plates. So we have seen, we have the different soils for, and those soils are found in the different zones. They have the different texture, they have the different color, right? We have the mountains, we have the soft rocks, so it means, and plus we have the driest place also, we have the most rainiest place in the world, we have the mountains, we have all the features, we have all the features जो एक कॉन्टिनेंट में होना चाहिए। तो बेसिकली फिजिकल फीचर्स जो जो होने चाहिए वो सारे चीज़ें हैं। तो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट, हमें गर्व होना चाहिए दैट वी आर इंडियंस, बिकॉज हमारे इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, अब एक चीज़ जो आपको आती है ना, वो आपको आता है दैट इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये पार्ट 1 है, राइट, ये पार्ट 1 है। I will complete the other part. ये क्या है, ये पार्ट 1 है।
तो अब देखो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, अभी डोंट सी दिस फिगर, ये मैप क्या है मैं आपको समझाऊंगा। तो ये क्या है, इसको इंटरनल रीजन्स बोलते हैं, यानी जो इंडिया का जो मैप बना या फिर ऐसी एक थ्योरी थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो क्या थी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये थ्योरी आई कहाँ से, ये आपकी किताबों में नहीं लिखा हुआ है। एंड इफ यू आस्क फ्रॉम योर टीचर, दोज हु आर टीचिंग, इफ यू हैव द वेरी डेप्थ नॉलेज, इफ यू हैव द रियली पैशन टुवर्ड्स द टीचिंग, यानी और टुवर्ड्स द गिव द नॉलेज, इफ यू हैव द लॉट ऑफ स्टडी, देन यू को बता पाएंगे। और या फिर वो बहुत अच्छे से अध्ययन किए होंगे। तो आई एम नॉट सेइंग दैट आपके टीचर खराब होंगे, अच्छे होंगे। एनीवे ये देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहाँ से। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जो थी ये इंटरनल थ्योरी है, ये है ना, ये से मॉर्गन वगैरह ने दिया था, इसको मॉर्गन वगैरह ने दिया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसी और ने दी थी, तो वहाँ पे आपको वो नहीं होना है, मतलब कॉन्फ्यूज नहीं होना है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स मॉर्गन ने दिया था, और उनकी मॉर्गन की ही थ्योरी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो ये क्या होती है, इंटरनल रीजन से होती है, यानी कोई भी जो लैंडमार्क्स बनते हैं, वाट एवर द फीचर्स वी आर हैविंग, उनमें उनका बेसिकली द मोस्ट एक्सेप्टेबल जो थिंग्स विच वी हैव एक्सेप्टेड, इट इज़ दैट इज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, दैट इज द इंटरनल रीजन्स। नाउ ये थ्योरी क्या सजेस्ट करती है, ये थ्योरी सजेस्ट करती है, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द क्रस्ट, दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, है ना, द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ जो है has been formed out of 7 major and minor plates. So stresses within the plates and the continental rocks build up during the movement of the plates led to the folding, faulting and volcanic eruption. अब यहाँ सुनो, यहाँ पे क्या होता है, यानी आपको पता है कि हमारा जो ये अर्थ का जो क्रस्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि चलो एक बता दे रहा हूँ कि ये जो अर्थ का जो क्रस्ट है ना, चलो ये अर्थ का क्रस्ट है, हम लोग अपर पार्ट को, आउटर पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं। अब ये जो आउटर पार्ट जो क्रस्ट है उसको क्या बोलते हैं, आउटर पार्ट को, क्रस्ट को, जिसपे हम लोग रहते हैं, डेट इज द लिथोस्फीयर, सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, राइट। तो उन्होंने बताया जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, यानी ये जो अपर पार्ट है, लिथोस्फेरिक क्रस्ट का जो पार्ट है, लिथोस्फेरिक प्लेट, उसके नीचे वो 7 मेजर और माइनर प्लेट से बनी हुई है। यानी क्रस्ट का जो अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है, यानी इनर पार्ट है, वो 7 और माइनर प्लेट से बना हुआ है। उसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट है, जिसपे सारी सॉलिड चीज़ें होती है। अब क्या होता है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स, राइट, ये लिथोस्फेरिक जो प्लेट है, जो अपर पार्ट, उसको मैंने क्या बोला, लिथोस्फेरिक प्लेट। और एक होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओके, देखो मैंने फिर मैं आपको इमेजेस समझाऊंगा, देखना, राइट। तो ये क्या है, ये 7 मेजर और माइनर प्लेट्स से बनी हुई है। यानी इसका जो मेजर प्लेट्स की गिनती याद रखना, माइनर प्लेट्स, बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं, बट उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेजर प्लेट्स का याद रखना, डेट 7 मेजर प्लेट्स से बनी हुई है। अब उसमें बोल रहा है स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स बिल्ड अप ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स लीड्स टू द फोल्डिंग एंड faulting and volcanic eruption. ओके, सो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ये क्यों ऐसा होता है। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला क्रस्ट है, तो अब देखो दो चीज़ें होंगी, क्या होंगी, एंड फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो लेट अस एज्यूम दैट दिस इज द आवर अर्थ क्रस्ट, आउटर पार्ट, राइट। ये मैंने बताया कि आउटर क्रस्ट है, लेट अस एज्यूम कि ये आउटर क्रस्ट है, एंड देयर आर सम क्रैक्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सम क्रैक्स है, इट मीन्स द आउटर क्रस्ट, वहाँ पे सम क्रैक्स है, राइट। आउट बिकॉज वी नो दैट द आउटर सरफेस वाज ब्रोकन, है ना, आउटर सरफेस वाज ब्रोकन इन मेनी पार्ट्स। आउटर लिथोस्फेरिक जो 7 प्लेट्स है, अब मैं बोल रहा हूँ कि वो क्रैक्स है, वो क्रैक्स क्यों आती है मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या होता है देखो। तो अब ये जो प्लेट्स है ना, ये क्या है, दीज आर नोन एज द आउटर क्रस्ट, और मैंने एक नाम लिया, क्या नाम दिया, लिथोस्फेरिक प्लेट, ध्यान से सुनना, लिथोस्फेरिक प्लेट। ओके, सो दिस लिथोस्फेरिक प्लेट आर फ्लोटिंग ऑन द लेयर ऑफ एस्थेनोस्फीयर। ये कहाँ फ्लोट कर रहे हैं, एस्थेनोस्फीयर के लेयर पे फ्लोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने बोला यहाँ पे दे आर ब्रोकन, अब दे आर ब्रोकन, सो लेट अस कंक्लूड कि दे आर ब्रोकन, जो 7 मेजर माइनर प्लेट्स में बटे हुए हैं, तो दे आर ब्रोकन, तो चलो मानो मैं बता दे रहा हूँ कि लेट अस एज्यूम दैट दीज आर द प्लेट्स, राइट, दीज आर द प्लेट्स। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें होंगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे द थिंग इज दैट व्हेन, लिसन मी, व्हेन दिस
plates collides each other, when these plates are colliding each other, it means the lithospheric plates which are cracked, right, the upper part of the crust which have the 7 major minor plates, right, and which are cracked, when they will collide, when they will collide each other, that time what will happen, that time when they are collide each other, वहाँ पे अब देखो जब भी कोई प्लेट्स कोलाइड्स करती है, मूव करती है, वी फील द अर्थक्वेक. So when they will collide each other, this process is nothing but this process is what? This process is called folding. यानी वो क्या होगा, वो कोलाइड करेंगी और एक मिनट कोलाइड करेंगी और क्या करेंगी, वो फोल्ड करेंगी, राइट. आई मीन दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोल्डिंग व्हेन द टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग. अब ये आपस में टकराती हैं, टकरा के क्या होता है, ये लोग एक दूसरे से टकराने के बाद फोल्डिंग हो जाता है, और इसी से फॉर्मेशन क्या क्रिएट होता है, इन्हीं से फोल्डिंग के बाद देखो आपने आपने इफ़ यू हैव रीड द क्लास 6 बुक, राइट, इफ़ यू हैव रीड द क्लास 6 बुक, वहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स का जिक्र है. यानी जो मैंने बोला एक ये फोल्ड, यहाँ पे एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इफ़ दे आर कोलाइडिंग ईच अदर, तो जस्ट लुक एट माई हैंड्स. देखो ये मान लो कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट से जो फ्लोट कर रही है स्टेनोस्फेयर पे, क्रैक्ड है. अब क्या हो रहा है कि प्रेशर की वजह से लिथोस्फेयर दे आर गोइंग टू बी कोलाइड, आपस में टकरा रही हैं, राइट, दे आर गोइंग टू बी कोलाइड्स. अब ये जो कोलाइड की, तो जाहिर सी बात है कोलाइड करने के बाद क्या होगा, दे विल कोलाइड इच अदर. आपने कभी टक्कर देखी होगा तो या तो एक टक्कर लगने के बाद एक दूर चला जाता है या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं. एक्सीडेंट इफ यू हैव सीन इन द मूवीज, सेम थिंग यहाँ पे होगा. इफ दे विल कोलाइड इच अदर, इफ दे विल कोलाइड, एज ए रिजल्ट यू नो दे विल ओवरलैप इच अदर. यानी ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी, ये प्लेट्स ऐसे आपस में टकराएंगी, और टकराने के बाद इनमें क्या होगा कि जैसे इनमें क्या होगा कि यू नो दे विल कोलाइड्स एंड दे विल यू नो मूव इच अदर, दे विल क्लाइंब इच अदर, एंड एज ए रिजल्ट यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बनने शुरू हो जाएंगे. देखो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो मेरे हाथ में किताबें हैं, राइट, दिस इज अ काइंड ऑफ अ बुक. मैं इसको तो और थोड़ा करता हूँ अगर आपको विजिबल हो. इफ आई जस्ट गिव अ प्रेशर, सपोज आई एम कोलाइडिंग इच, अगर मैं देखो ऐसा प्रेशर दे रहा हूँ तो इट विल स्टार्ट गोइंग अप. आई होप दिस इज विजिबल. So if it is start going up, it means what, that it means this is nothing but this is the folding, right, this is what, this is the folding. तो इस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ. इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, और जिसका एग्जाम्पल क्या है, कैन गिव मी द सम एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन. और इस तरीके से हमारा एक लैंड मास बना जिसको हम लोगों ने बोला माउंटेन. और ये कौन से माउंटेन बने, ये माउंटेन बने हमारे फोल्ड माउंटेन्स. आप क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक पढ़ना, उसमें फोल्ड माउंटेन्स का ऐसा ही एग्जाम्पल दिया है. वहाँ पे प्लेट्स का जिक्र नहीं है बिकॉज उस बच्चों का बुक है. बट अब आपको पता चल रहा है कि दैट दिस इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. वो इंटरनल रीजन है, जो हमारी जो क्रस्ट है वो कई हिस्सों में टूटे हुए हैं. इन दैट इज द अपर क्रस्ट जिसको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट कर रहे हैं, और वो फ्लोट कर रही है, फ्लोट कर रही है. तो जब उसमें फोल्डिंग होंगी, जब वो आपस में टकराएंगी, इट विल you know climb each other and the fold mountains creation will take place. Can you name some fold mountain? The best example of fold mountain is our country, you can say protected, that is the Himalaya. Himalaya is an example of young fold mountain because उसमें changes आते रहते हैं. It is still undergoing phase. Others, Rockies mountains, Alps mountains, these all are the example of the fold mountains. So I hope what is folding? Folding is understood to you. Folding is nothing but folding is a what? Collapsing of two crust or two plates. When they will collide each other, they will go up and the fold mountain creation will टेक्स प्लेस. तो यहाँ भी वही बोला कि जब स्ट्रेस, जब उनमें कुछ दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, जो प्लेट्स है और जो रॉक्स हैं वो क्या करेंगी, वो एक दूसरे से टकराएंगी और उनमें फोल्डिंग होगा, फॉल्टिंग होगा, वॉल्केनिक होगा. अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये थ्योरी मैंने क्यों रखी कि वॉल्केनिक इरप्शन क्यों आता है. अब फोल्डिंग में बता दिया, आपको फॉल्टिंग बताता हूँ. ओके, so let me clear this once again. Just tell guys, please message me or give the feedback whether you are understanding or not. If you're not understanding, then I have to use some different methods ताकि आपको समझ में आ जाए. But I hope that यहाँ तक आपको क्लियर होगा. अब मैं आपको फॉल्टिंग बताता हूँ. चलिए, फॉल्टिंग, FAUL. I need to purchase the pin, that is the pin pad या क्या बोलते हैं उसको, pin tab या pin tab, because this mouse is okay. चलिए, फॉल्टिंग.
So we have seen that the crust is broken in the upper crust is broken in several pieces, and when they are colliding, the uh, folding occurs. Whenever we talk about the faulting is nothing. चलो एक फिर से प्लेट बनाते हैं. चलो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फॉल्टिंग. ये हमारा क्या है, फॉल्टिंग. ये हमारा क्या है, फॉल्टिंग. तो चलो ये दो प्लेट्स से मैंने प्लेट्स क्रिएट किया. ओके, एक्चुअली आई एम जस्ट लुकिंग दैट साइड दैट कोई पॉइंट स्किप तो नहीं कर रहा, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग कंसेप्ट. सो सपोज लेट अस कंसिडर दैट दिस इज अगेन अ प्लेट, राइट. इसको मत देखो, यहाँ देखो. सो लेट अस कंसिडर, तो एक में आपस में टकरा रही थी, दूसरे में क्या होगा, व्हेन द टू प्लेट्स, व्हेन द टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, व्हेन द टू lithospheric plates which are already cracked on, which are found on the upper parts of the earth's surface, when these two plates are what, are 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 moving away, moving away from each other. एक में टकरा रही थी, ऊपर चढ़ रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों दूर भाग रहे हैं. Both are going in different direction. When the two plates are going away from each other, this process is known as the faulting. अब वहां पे देखो, वहां पे फोल्डिंग हो रहा था, चढ़ रहे थे, माउंटेन क्रिएशन हो रहा था. अगर यहाँ पे वो लोग एक दूसरे से भाग रहे तो यहाँ भी कुछ लैंडफॉर्म क्रिएशन होना चाहिए. yes or no? Logical. This is totally logical. If some plates are colliding and they are overlapping, it means they are taking the shape of the fold mountains, and that's why we got the fold mountains, right? But if they are going away, it means again something would happen. क्योंकि अगर ये मूव कर रही हैं तो बिना मूव किए अगर उनका कुछ क्रिएशन ना आए तो वो फिर जियोलॉजिकल थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बहुत डीप, ये जो गैप देख रहे हो ना, दिस रीजन्स, ये जो गैप देख रहे हो, दिस रीजन्स दिस रीजन्स बिकम वेरी डीप एंड नैरो. और यहाँ पे एक प्रकार का क्या बनता है, यहाँ पे बनता है एक प्रकार का वैली. व्हाट काइंड ऑफ वैली? दीज वैलीज आर नोन एज व्हाट? 6 का, 6 या 7 का एनसीईआरटी का, रिफ्ट वैली. ये क्या फॉर्मेशन क्रिएट करेंगी, ये फॉर्मेशन क्रिएट करेंगी रिफ्ट वैली. यानी जब फोल्डिंग होगा तो वो लोग माउंटेन क्रिएट करेंगी, फॉल्टिंग होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बनेगा रिफ्ट वैली. कैन यू नेम सम द रिफ्ट वैली? The best example is the Great African Rift Valley. Yes, one of the biggest and the greatest major rift valley in the world, Rift Valley. In India also we have a one Rift Valley. Can you name that? हमारे यहाँ भी रिफ्ट वैली है. चलो मैं ही बता देता हूँ. द नेम इज दैट Narmada Tapi Rift Valley in India we have. So that's why I said na, that everything what are the necessary elements which require to be a continent, वो सारी चीज़ें हमारी में है. तो देखो इसी वजह से क्या हो रहा है, जो प्लेट्स की वजह से फोल्डिंग फॉल्टिंग होता है और लैंड फॉर्म्स आता है. तो ये आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलता है कि जो प्लेट्स है वो 7 मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स है, और उनमें जब प्रेशर से, दबाव से जब प्लेट्स और कॉन्टिनेंटल रॉक्स टकराते हैं तब क्या बनता है, तब क्या होता है, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक इरप्शन. ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट द फॉल्टिंग एंड दिस व्हाट this is about this is I have told about the folding and this is a faulting. ओके, अब देखो ये थ्योरी मैंने क्यों रखा है, एग्जांपल याद रख लेना. दैट रिफ्ट वैली है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, इंडिया में नर्मदा तापी रिफ्ट वैली है. ओके, एंड प्लीज I said that if you are preparing for any of the examination, especially for the civil service or any other high examination, then the NCERT books is known as the Bible for the preparation. So please keep the preparation, at least keep all your NCERT books and please go through it. ये सारी 6 में की चीज़ें हैं, फोल्डिंग, रिफ्ट वैली, उसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है. ओके, अब चलो मैं आपको इस इमेज का बताता हूँ. ये इमेज से रिलेटेड ही है. ये इमेज मैंने क्यों रखा है, बिकॉज दिस इमेज इज related with that what about plate tectonics theories. अब ये इमेज आप देख रहे होगे, ओशियनिक क्रेस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर है. तो ये हमारा देखो, ये इमेज देखो, ये हमारा लिथोस्फीयरिक प्लेट्स है. तो लिथोस्फीयरिक जो प्लेट होगा
वहाँ पे क्या होता है, देखो प्लेट्स अगर लिथोस्फीयरिक जो अपर पार्ट है वो लिथोस्फीयर है, मैंने आपको बताया राइट। तो अगर अगर ऐसा कुछ होगा राइट, वॉल्केनिक इरप्शन कब होता है, मैं आपको वही बता दे रहा हूँ। इफ देयर आर प्लेट्स, दैट इज एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी तो दूसरी ओशियनिक प्लेट होगी या ओशियनिक क्रस्ट होगा, ये नॉर्मल है राइट। और इसी वजह से मोस्टली वॉल्केनिक इरप्शन होते कौन से रीजन में, कौन से रीजन में मोस्टली वॉल्केनिक इरप्शन होते, कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन में देखना, ये जो हाई माउंटेन्स होंगे वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन मोस्टली होते हैं। वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, दैट इफ देयर इज अ वन प्लेट दैट इज द ओशियनिक प्लेट एंड अदर वन इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ध्यान से सुनो, ये ओशियनिक क्रस्ट, लुक एट माय हैंड, दिस इज द ओशियनिक क्रस्ट जो यहाँ पे आपको इमेज के जरिए बताया गया है। दिस इज द ओशियनिक क्रस्ट, दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। नाउ compare to the continental crust or continental plate, these oceanic plates is heavy. So when they will collide, in case of oceanic plate and the continental plate, so when they will collide, the heavy plate will go down, the heavy plate will go down, right? तो मैंने बोला विच वन इज हेवी, द ओशियनिक प्लेट इज हेवी एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लाइटर। ओशियनिक प्लेट बहुत भारी रहता है कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जब ये आपस में टकराएंगी राइट, आपस में टकराएंगी तो फिजिक्स का मोशन, फिजिक्स का लॉ बोलते हैं या तो वो दूर चली जाएंगी, या तो ये उसका एनर्जी उसको ले लेगा, या फिर दोनों, या फिर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, या फिर एक नीचे जाएगा। तीन चीज़ें होती है फिजिक्स में। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ पे यही हो रहा है कि जब ये आपस में टकरा रही हैं, जो हेवियर वन है दैट इज द ओशियनिक क्रेस्ट है, इट विल गो डाउन, इट विल गो डाउन। तो एज यू कैन सी, जस्ट सी हियर, देखो ओशियनिक क्रस्ट जब टकराने के बाद क्या हो रहा है, देखो ये नीचे चली जा रही है, यू कैन सी, लुक इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स राइट, इट विल गो downwards, and when it will go, and when it will cools right, when it will cools down, जब ये टकराने के बाद गर्म होकर अंदर जाएगी, अंदर टेम्परेचर बहुत है, उसके बाद जब ये ठंडी हो जाएगी, अगेन इट विल गो अप विद द इन द फॉर्म ऑफ मॉल्टेन मैग्मा। मॉल्टेन मैग्मा के साथ ही जब ये ठंडी हो जाएगी तब ये ऊपर उठेगी। जो मैग्मा है, जो क्या है, मॉल्टेन मैग्मा है, आप उसको बोल सकते हो कि वो नॉट फुली मॉल्टेन है, बट मॉल्टेन मैग्मा के साथ वो क्या होगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने के बाद ये जो माउंटेन से, जो पहाड़े हैं उसके मुंह से निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। सो इसी वजह से क्या होता है ना, कोस्टल रीजन्स में वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत होते हैं, बिकॉज ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट व्हेन इट विट्स कोलाइड्स राइट, when it is collides, the oceanic plates goes down, and when it is goes down, वहाँ पे हमें क्या मिलता है, जब वो नीचे होकर, जब कोलाइड करेगी नीचे जाएगी, टेम्परेचर बहुत है, फिर जब ठंडी होगी, आधी ठंडी होगी, तब वो ऊपर आएगी मैग्मा के साथ, और लास्टली जब उसका प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वो फट के बाहर निकलेगा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक एरप्शन। एंड व्हेन दैट एरप्शन, वॉल्केनिक एरप्शन, व्हेन इट, जो हमें बाहर निकलता है वो क्या होता है, जो एरप्शन से, जिसको हम लोग बोलते हैं लावा राइट। तो इसको इसी वजह से क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, याद रखना, जो टक्कर होगा ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियनिक क्रस्ट, तो वो हमेशा इन दोनों के बीच में होती है। अगर कोस्टल रीजन में हो रही है वॉल्केनिक, आप कहीं देख रहे हो, तो याद रखना कि वहाँ पे दो क्रस्ट होगी, एक होगी ओशियनिक प्लेट होगी, एक कौन सी होगी, एक होगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी दोनों में जब कोस्टल रीजन में हो रही है तो वही होगा। तो वी हैव द एग्जाम्पल, कैन यू नेम सम वॉल्केनिक माउंटेन्स एग्जाम्पल। आपका एंडिस नाम सुना है, रॉकीज नाम सुना है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस। सो इसी वजह से ना हमारे यहाँ पे वॉल्केनिक eruption भी होते हैं राइट। और भी कई रीजन है, बट ये अगर हम लोग प्लेट, चूँकि हम लोग वी आर डिस्कसिंग विद द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, तो ये भी एक प्लेट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो तीन चीज़ें हमने पढ़ा, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक। समझ में आ गया, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स जो कि हमने यहाँ बताया राइट, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, बस इसको एक नाम दे दिया गया, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने पढ़ा फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, उसका मूवमेंट। मूवमेंट किस प्रकार का होगा, दैट इज द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, दैट इज द कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, इट विल नोन एज द कन्वर्जेंट बाउंड्री, दैट इज नथिंग बट द काइंड ऑफ अ phenomena which related to the folding. The second one is the divergent boundary, right, that is the plates move away from each other
plates move away from each other, that is nothing, it is nothing, it is nothing but it is what, it is a kind of what, it is kind of a FAULTING. Hey guys, please tell me, right, whether this session is boring or you are understanding it. I don't know, because थोड़ा सा कंसेप्ट कंसेप्चुअल चैप्टर है, अगर आप इसे डिटेल से पढ़ोगे, अगर लाइन देख के बुक से मैं पढ़ा दूँ तब तो बहुत आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ नहीं, हलवा है, बट रियली में हलवा है, लेकिन it is some, you have to understand the things, the small things which is hidden in this chapter, which I want you to convey. The third one is the transform boundary. So please let me know, now transform boundary, when the plate moves horizontally coming together, they may either collide and crumble or one may go under to वन अनदर. तीसरा क्या होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, या तो वो हॉरिजेंटली वो लोग टकराएंगी, है ना, एक दूसरे पर कोलाइड कर सकती है, चढ़ सकती है, या फिर एक दूसरे को ऊपर या फिर एक दूसरे को ओवरटेक कर सकती है, दबा सकती है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर ऑफ इंडिया. और इसी सब मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से हमारा जो अभी जो इंडिया का लैंडफॉर्म फीचर है वो उसमें बदलाव आया है और अभी बदल रहा है. फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं बता दूं कि 2004 में 2004 राइट, 2004 व्हेन द सुनामी ऑकर्ड, 2004 या 5 में सुनामी आई थी, 2004 या 5 में सुनामी आई थी, तो जो हमारा जो साउथर्न टिप पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है ना, या इंदिरा पॉइंट है, वो क्या था, वो 10 किलोमीटर या कितना मीटर नीचे चला गया, दब गया है. वो पहले वो ऊपर था पर वो दब गया है, क्योंकि जब भूकंप आया था, जो अंदर सुनामी हलचल हुई थी उसके वजह से. तो वही लिखा है दैट दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया. तो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख लीजिए, convergent when the two plates are colliding, right, here when the two plates are just going other. ट्रांसफॉर्म्स में क्या हो रहा है, आपस में या तो वो टकरा रही हैं, दूर भाग रही हैं एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे पे क्रम्बल भी कर सकती हैं. तो ये इमेज बेसिकली आपको अंडरस्टूड कराने का था. आप लोग नेक्स्ट स्लाइड मूव करके और इस इमेज के जरिए समझ सकती हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब एक आता है which is given in the book, that is the ancient continents. This is a very important, this is also known as the continental drift theory. What? Continental drift theory. Hold a moment. So this is what the continental drift theory. अब इसके बारे में ये जो थ्योरी क्यों पढ़ना है आपको मैं बता दूं, जो जिसके वजह से गोंडवाना, अंगारा और ये तेथिस का कंसेप्ट आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ. अभी आप ये मैप मत देखो, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो एंड लिसन दिस माय एक्सप्लेनेशन. ओके, नाउ दिस एंशिएंट कॉन्टिनेंट्स इज also this ancient continental theory is also known as the continental drift theory. Now this theory is widely accepted and it was given by the German geologist, जोग्राफर थे, जियोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था वैगनर. वैगनर क्या, माइकल वैगनर या कोई वैगनर थे, राइट, मैं भूल रहा हूँ, शिट मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई वैगनर थे, मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, आप उनका फर्स्ट नाम सर्च कर लेना एक बार, WGNER, माइकल वैगनर और मैक्स वैगनर, आई डोंट नो, बट ही वाज फ्रॉम जर्मनी एंड ही हैज गिवन दिस थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. और उन्हीं के आधार पर ये ना एंशिएंट कॉन्टिनेंट थ्योरी का कंसेप्ट आया. अब उनके अनुसार क्या था, वैगनर ने क्या वो किया था, अपना थ्योरी दिया था. अकॉर्डिंग टू हिम दैट, उनका मानना था दैट व्हाट एवर द कॉन्टिनेंट्स हम लोग जो आज देख रहे हैं, जितनी जो कॉन्टिनेंट्स हम आज देख रहे हैं ना, जो लैंडफॉर्म 7 कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, उनका मानना था दैट वेरी वेरी मिलियन ऑफ ईयर से, याद रखना हिस्ट्री ज्योग्राफी में 100 साल 200 साल कुछ नहीं होता है. ज्योग्राफी में 100 साल 200 साल बोले तो एक दिन या 2 दिन, यानी जो एवोल्यूशन जो होते हैं, चेंजेस होते हैं, प्लेट टकराने के बाद जो चेंज आते हैं ना, वो लगभग 100-200 साल लगता है, पर ज्योग्राफी में उसको 1 या 2 दिन कंसिडर किया जाता है, उतना नहीं लिया जाता है. तो उनका मानना था जो कि एंशिएंट जो कॉन्टिनेंट्स है, यानी हमारे पास जितने जो अभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वी हैव द 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, आप लोग 3-4 से पढ़ते आ रहे हो. तो these all 7 big land masses, these all 7 continents was the part of a big land mass, जिसको उन्होंने नाम दिया था पैंजिया, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, पैनजिया.
According to the Wagner, who was a German and geologist, according to him, the all 7 big continents was the parts of a big landmass which was known as the Pangea. राइट अब क्या हुआ कि पैंजिया को उन्होंने बताया कि पैंजिया जो है वो क्या हो रहा है, पैंजिया में कुछ फीचर्स आए और या फिर कुछ उसमें प्रेशर आया या फिर कुछ चेंज आया है ना, या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होगी, कुछ भी होगी, उसके वजह से क्या हुआ दैट पेंजिया वाज ब्रोकन इन द 2 पार्ट्स, दैट इज द गोंडवाना लैंड एंड द अंगारा लैंड. What is Gondwana land and the Angara land? The south part was the Gondwana land क्या बन गया आपका, साउथ पार्ट बन गया, ओके. और जो अंगारा लैंड है वो क्या बन गया, नॉर्थ पार्ट बन गया. गोंडवाना लैंड जो था वो साउदर्न पार्ट में चला गया, अंगारा लैंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेंजिया था, ओके. अब जो इंडिया जो है, इंडिया, अब मैं कुछ यहाँ तक मत सुनो, यहाँ तक देखो, इधर यहाँ देखो, यहाँ पे दिखाया गया बड़ा लैंड मास है, एक पूरा एक पेंजिया है 225 मिलियन. फिर 200 मिलियन ईयर से में क्या आया, उसको में कुछ भूकंप आया, कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ सम एक्सटर्नल फीचर्स, दिस टूज आर ब्रोकन. देखो गोंडवाना लैंड ये ऊपर चला गया, राइट. अब देखो धीरे धीरे अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इमेज शायद स्लाइड मैंने ठीक से नहीं डाली है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया कि 2 पार्ट में बन गया गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड, यानी 2 पार्ट्स में यहाँ पे ब्रोकन हो गए हैं दिस इमेज में. अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे, देखो ये हमारा एशिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिखाया गया है, ओके. ये ऑस्ट्रेलिया दिखाया गया है. एक और स्लाइड है क्या इधर, नहीं है, चलो तो मैं आपको दिखाता हूँ. इधर देखो, ये जो नॉर्थ पार्ट में 2 पार्ट में बन गया गोंडवाना अंगारा, और साथ साथ और जो यहाँ पे लिखा गया है डेट इंडिया के बारे में बता दूँ, इंडिया वाज आल्सो अकॉर्डिंग टू हिम, इंडिया वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, यानी इंडिया किसके पार्ट में था, गोंडवाना लैंड था. और उसमें लास्ट में उसके बाद जो क्या था, जब वो उसमें जब चेंजेस आए, यानी जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, जब वो फर्दर मूव की, तो इंडिया देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे, इधर यहाँ देखो, यहाँ पे ये आपका ये 2 पार्ट में बट गया है. और ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन ऑस्ट्रेलिया है, और इंडिया आपका यहाँ पे कहीं होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट आपका यूरेशियन प्लेट है. तो लास्ट में क्या होता है कि इंडिया जो है, इंडिया का जो इंडिया जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी की वजह से ही, इसी चीज़ की वजह से ही जब उसमें हलचल होगी तो वो क्या होगी, वो जाके इंडियन प्लेट्स जो है, यानी ये जो हमारा इंडियन प्लेट्स है, यहाँ पे इमेज सही नहीं है, मैंने गलत इमेज, आपको थोड़ा इमेज को और अच्छे से डालना था. ये जो पार्ट है इंडिया का, यानी इंडियन प्लेट से, वो जाके किससे टकराएंगी, वो जाके टकराएंगी यूरेशियन प्लेट से, यानी यूरोप प्लस एशिया, द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया नोन एज द यूरेशियन. वो जब उससे टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है, वहाँ पे टकराने से वहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स का बनना शुरू हो जाते हैं, है ना. तो उनका कहना था, इस कॉन्टिनेंटल थ्योरी में उन्होंने ये बात कही थी कि इंडिया जो है, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है विच इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास, और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और एंटार्क्टिका, ये सारे किसके पार्ट थे, वो सारे थे आपके गोंडवाना लैंड के ही पार्ट थे, राइट. ये सारे गोंडवाना लैंड के पार्ट थे. और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही बोलती है कि there was not the 7 continents, there was a big landmass which is known as the Pangea. Pangea was divided into 2 parts, Gondwana and Angara, and India was the part of the Gondwana land. And afterwards, after striking the Indian plates with the Eurasian plates, क्या हो गया, वहाँ पे जब टकराती है, वहाँ पे टकराने के बाद वहाँ से क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन बनना शुरू हो जाते हैं और हिमालय बन गया, हिमालय हमारा बन गया. और इस तरीके से इंडिया का फॉर्मेशन शुरू हुआ, क्योंकि जब मिलियन ऑफ ईयर्स में जब वो प्लेट्स मूव करते करते फाइनली जो गोंडवाना लैंड जो हिस्सा था वो इंडिया से, जो यानी गोंडवाना लैंड में जो इंडिया था वो जाके किससे टकराता है, यूरेशियन प्लेट से, यानी जो मूव करता है. और ये अभी भी कहा जाता है ना, स्टिल एवरी ईयर, जो मैं आगे स्लाइड में डालूंगा, स्टिल एवरी ईयर 5 to 16 सेंटीमीटर इंडियन प्लेट्स जो है मूव कर रही है, यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है, पर हमें पता नहीं चल रहा है, राइट. सो ये सारी चीज़ें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में है. अब फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, चलो फॉर्मेशन ऑफ इंडिया आपको बता दूं. द कन्वेंशनल करेंट्स स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, दस लीडिंग डिफरिंग टू द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, राइट. यानी जो कन्वेंशनल करेंट थी, कन्वेंशनल करेंट की वजह से क्या हुआ, क्रस्ट का बहुत सारी चीज़ें टूट गई, स्प्लिट हो गए, वो ख़त्म हो गए. और उसके वजह से क्या हुआ,
जो टूटने के बाद जो इंडियन प्लेट्स थी, यानी जो इंडिया वाला जो पार्ट था, वो जाके किससे जाके टकराना शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया के पास गया, और फिर जाके लास्ट में किससे टकराएगा, यूरेशिया से। राइट, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। हाँ, ये वाली इमेज सही है, ये वाली, यस, ये इमेज आई वाज सर्चिंग। यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया सब एक साथ है, सब एक साथ है, यानी सारी ये गोंडवाना के पार्ट है 170 मिलियंस में। अब देखो क्या हो रहा है, आफ्टर 162 मिलियन ईयर्स एगो में देखो इसमें चेंजेस आ रही है, इसमें चेंजेस आ रहे हो, यहाँ से क्रैक आया, यहाँ से क्रैक आया, यहाँ से कुछ हलचल हुई है ना, भूकंप होगा, या फिर मे बी ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, फोल्डिंग फॉल्टिंग से यहाँ से देखो कुछ भी, यहाँ से देखो यहाँ पे क्रैक आया, और उसके बाद देखो इंडिया बिल्कुल अलग हो गया, 135 मिलियन ईयर्स आते आते ये मूव कर गया, अलग हो गया, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका बच गए। उसके बाद क्या हुआ, जो जो इंडिया जो है, यानी जो इंडिया जो है, यहाँ देखो, इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल अलग हो गई, और लास्टली देखो इंडिया अब जो यहाँ पे आ गई है, अभी 60 मिलियन से यानी अभी का सिचुएशन देखो, इंडिया आ गई है, और ये जो प्लेट आपको दिख रहा है ना, ये प्लेट क्या है, ये प्लेट है आपका यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट कौन सा है, ये प्लेट आपका यूरेशियन प्लेट है, और इंडिया अभी भी मूव कर रही है, इंडिया अभी भी मूव कर रही है किसके, कौन से प्लेट की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ। तो क्या हुआ, द कन्वेंशनल करेंट्स के आने के वजह से, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, द कन्वेंशनल करेंट स्प्लिट्स द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, यानी जो प्लेट्स जो थे, जो इंडिया का जो लैंड फॉर्म था, और जो अंगारा गोंडवाना जो लैंड थे, जो पेंजिया के हिस्से में था, उस वो बहुत सारे हिस्सों में बट गए, और धीरे धीरे वो यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स की तरफ वो मूव करने लगे, और लास्टली वो बिल्कुल अलग हो गए, और इंडिया का क्रिएशन हुआ। देखो यहाँ देखो, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक साथ है, ठीक है, देखो अंटार्कटिका इधर है, ऑस्ट्रेलिया इधर, यानी ऑस्ट्रेलिया से अब इंडिया अलग जा रहा है, बिल्कुल अलग हो गया, राइट, और ऑस्ट्रेलिया से दूर भागते भागते चला गया, और लास्टली इंडिया का क्रिएशन हो गया, यानी जो ऑस्ट्रेलिया जो था वहाँ के से टूट कर वो अलग नॉर्थ की तरफ जाने लगता है, और अभी भी इंडिया मूव कर रहा है किसके तरफ, यूरेशिया की तरफ, और इस तरीके से इंडिया का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द कन्वेंशनल करेंट्स। कन्वेंशनल करेंट्स क्या होता है, लेट मी सी, मैंने लिखा है कि नहीं, यस, चलो, मुझे पता था कि ये थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी एम्बिग्यूस है थोड़े से बच्चों के लिए, कि कन्वेंशनल करेंट आप है क्या, आप लोग मुझसे कोई पूछ सकता है, सर व्हाट इज कन्वेंशनल करेंट, राइट, तो इसके लिए भी मैंने स्लाइड ऑलरेडी तैयार करके रखा है, अभी जान लो फॉर्मेशन ऑफ इंडिया कैसे होगा, बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल करेंट, जिसकी वजह से जो क्रस्ट था, जो गोंडवाना लैंड्स के जो क्रस्ट जो थे, जो पार्ट थे, वो स्प्लिट हुए, और वो मूव करने लगे नॉर्थ साइड में ऑस्ट्रेलिया की तरफ, एज ए रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया भी अलग हो गया, और अब वो मूव किस तरफ कर रहे हैं, यूरेशियन प्लेट की तरफ। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन कॉलिशन ऑफ द प्लेट विथ यूरेशियन प्लेट, एस सी यहाँ पे मेंशन्ड है, द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कॉलिशन ऑफ द प्लेट विथ यूरेशियन प्लेट, and due to this collision formation of sedimentary rocks takes place which were accumulated in the geosynclines, क्या लिखा है, geosynclines, what is this, geosynclines, okay, yeah, geosynclines known as the Tethys Sea, यानी जब वो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से की तरफ मूव करते करते, और जब वो आगे नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, तो जाके वो किससे टकराते हैं, यूरेशियन प्लेट से, जो कि देखो अब इधर है ना, इधर है, और ये यूरेशियन प्लेट है, और आगे भी इंडिया इसी तरफ मूव कर रही है, आगे भी यूरेशिया से टकराएगी, जब यूरेशिया से जब वो टकराएगी, इससे क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स जो थे वो बने, और एक बड़ा सा जियोसिंक्लिनेशन चेंज आया, ये क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, और उसके वजह से क्या बन गया, उसके वजह से एक बड़ा सा सी बन गया, विच इज नोन एज द तेथिस सी, which is what, which is known as the Tethys Sea. Now let me tell you what is the conventional crust. आपको I hope up to this आपको समझ में आ गया होगा. What is conventional currents? Conventional current is nothing. Conventional current is nothing. A kind of a currents which flows very deep inside the mantle. अब यहाँ से देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. ये हमारा जो अर्थ का लोअर पार्ट है, मेंटल है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, देखो यहाँ पे 12,000 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस दिखा गया है. अब ये क्या होगा, जब ये यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होगा ना, ये ऊपर उठना शुरू करेंगी, राइट, एज सुन इट विल गो अप, एज सुन इट विल गो अप, राइट, इट विल बिकम लिटिल बिट कोल्डर, और वहाँ से कन्वेंशनल करंट से आप ऊपर जाने के बाद वहाँ पे जो जो क्रस्ट होंगे वो स्प्लिट्स होंगे, टूटना शुरू होंगे, और उसके बाद टूटने के बाद जब उनका टेम्परेचर उनको थोड़ा कम मिलेगा, they will collide with the crust, as a result the crust will splits, and when the crust will split, this current gets
slower or lower and they will again return back. फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, फिर ये ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ से टेम्परेचर हाई होने के बाद फिर क्रस्ट टूटेगी, फिर ये नीचे आएंगे, और इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। तो कन्वेंशनल करंट बेसिकली कहाँ से आती है? कन्वेंशनल करंट बेसिकली आती है आपके मेंटल वाले रीजन से। डोंट राइट मेंटल, हाँ, it's a, I am writing mental, it's a mantle, MANTLE, right? This is a mental. So direction of plate movements to the movement connection current below, यही चीज़ आपको बतानी थी। यहाँ से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाइट होता है जिसकी वजह से प्लेट्स मूव करते हैं या फिर वो ड्रिफ्ट करते हैं, और उसके वजह से ऊपर जाएंगे, स्प्लिट्स होगा, फिर वो वापस नीचे आएंगे, फिर गर्म होंगे, फिर जाएंगे, यानी करेंट चलते रहता है। क्योंकि हमको पता है हमारे घर धरती के नीचे बहुत सारी हीट एनर्जी है, बहुत सारी गर्मी है। तो वो गर्मी है, तो वो गर्मी है तब अंदर से जो गर्मी आएगा वो तो ऊपर फेंकेगी, और इसकी वजह से समटाइम्स जब भी याद रखना, जब भी प्लेट्स में कोई हरकत होती है, फोल्डिंग हो, फॉल्टिंग हो, या फिर कन्वेंशनल करंट जब भी उठेंगे, याद रखना उसी वजह से हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। माउंटेनियस रीजन्स में देखना बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, और कई बार माउंटेनियस रीजन्स का जो लेंथ होता है वो घट जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हिमालय इसको इसलिए वो इसको बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि उसमें अभी भी करेंट्स का मूवमेंट, फोल्डिंग और फॉल्टिंग अकरिंग्स होती रहती है। अंडरस्टूड? सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक लास्ट टॉपिक मैं समझा रहा हूँ, जियोसिंक्लिन्स आखिर है क्या। मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, ये जियोसिंक्लिन्स है क्या। देखो ये वर्ड, दिस वर्ड, व्हाट इज जियोसिंक्लिन्स, क्यों और इसकी वजह से तैतीस सागर ही का फॉर्मेशन हुआ। इसको दो साइंटिस्ट ने दिया था, जेम्स और क्या नाम था, चलो आपको बता देता हूँ जियोसिंक्लिन्स क्या है। द जियोसिंक्लिन्स आर मेजर स्ट्रक्चरल हियर, द जियोसिंक्लिन्स आर major structural and sedimentation all unit of the earth crust. It means they are kind of a sediment, right? They are elongated trough like depression submerged beneath the sea water. They are potential site, yani they have the capability, they are potential site of mountain building activity and full mountains, right? They have the potential, they have the power to create the mountain or fold mountains. These basins become filled with great thickness of sediments, and along with the accumulation of pile of sediments there occurs progressive subsidence of the basin floor. यहाँ पे आप इमेज देखिए, यानी ये एक प्रकार का जियोसिंक्लिन्स का इमेज है। मैंने क्या बोला कि जियोसिंक्लिन्स क्या है, बहुत सारा सेडिमेंट्स है जो कहाँ मिलता है, आपके बीनीथ द सी लेवल, बहुत बीनीथ द सी लेवल में आपको मिलेगा। और एक ट्रफ लाइक जस्ट लाइक द काइंड ऑफ अ नेट है ना, एक छकनी जिसको आप समझते हैं ना, वो होगा। वो क्या होता है, ये सब क्या करते हैं, ये एक प्रकार का उनको जितने जो सेडिमेंट्स आते हैं, चाहे वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरिक्स के जो सेडिमेंट्स हो, फॉल्टिंग की वजह से रिवर सेडिमेंट्स लाए, वो सी के बीच में नीचे वाले हिस्से में उनके में एक ट्रफ लाइक उनके पास जियोसिंक्लिन्स उसको बोलते हैं। दे आर काइंड ऑफ अ सेडिमेंट्स विच, और वहाँ पे वो डिपोजिट होते जाते हैं, यानी एक प्रकार का जाली टाइप का वो बन जाता है, वो बनाते हैं, उनके फीचर्स होता है। एक प्रकार का जाली होगा, एक प्रकार का नेट होगा, वेयर ऑल द सेडिमेंट्स इज गेट स्टोर्ड, वहाँ पे स्टोर्ड होते जाएंगे, और उनमें ये काबिलियत होगी कि वेनेवर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या कन्वेंशनल करंट ऊपर उठेंगे, वो सारे सेडिमेंट्स को ऊपर फेंकेंगे, और उस हिसाब से आपका माउंटेन का क्रिएशन होगा या फिर कुछ और लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन होगा, राइट। तो चूंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा था कि where that the Tethys Sea formed, yeah, that due to this collision formation sedimentary rocks takes place which were accumulated in the geosynclines known as the Tethys Sea, यानी जो ड्रिफ्ट हुआ, नॉर्थ वेस्ट ड्रिफ्ट हुआ, यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स ना क्या हुए, समुद्र के अंदर जाके समा गए, और वो जियोसिंक्लिन्स फॉर्म में समाते चले गए, जिसके वजह से उनका सारा सेडिमेंट्स और सारा जो उसके साथ जो पानी था वो एक्यूमुलेट हो गया एक जगह, और जिसकी वजह से एक बड़ा सा सी बना, जिसको हमने क्या बना, टेथिस सी। और जियोसिंक्लिन्स क्या होता है, काइंड ऑफ अ सेडिमेंट्स विच इज गेटिंग सबमर्ज्ड through the trough like depression beneath the sea water, and they are potential, यानी दे हैव द क्वालिटी, उनमें काबिलियत हो सकती है कि जब भी अगर वॉल्केनिक इरप्शन आए, भूकंप आए या कुछ भी आए, तो वो सारे सेडिमेंट्स को, सारे पानी को बाहर फेंक के दे कैन बिल्ड एनी काइंड ऑफ लैंडफॉर्म सच एज द माउंटेन्स एंड एवरीथिंग। So I hope this is understood to you, right? So here I am ending up this session, and thank you so much for bearing me.
Please give your feedback, and in the next class I will complete the next part. So I hope you understood the mountain formation, Himalayan mountain कैसे बना because of the fold and the folding. इंडियन प्लेट्स कैसे बने, आई मीन इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एंड स्टिल द इंडिया इज मूविंग एवरी ईयर 5 to 16 मीटर टुवर्ड्स विच प्लेट, टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, व्हेन द इंडियन प्लेट्स कोलाइड्स, व्हेन द इंडियन प्लेट्स कोलाइड्स विद द यूरेशियन प्लेट्स. एंड बेसिकली वो कब था कि वो था कि इंडियन प्लेट्स किसके हिस्से थे, इंडिया किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का जो एक बड़ा हिस्सा था, पेंजिया था. बट क्या होता है आफ्टर द मिलियन ऑफ ईयर्स में कन्वेंशनल क्रेब्स करंट की वजह से वो ड्रिफ्ट करते हैं और इंडिया अलग अलग चलने आती है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की तरफ मूव करती है नॉर्थ की तरफ. और नॉर्थ की तरफ मूव करते करते वो क्या करती है, नॉर्थ की तरफ मूव करते करते वो लास्टली अलग हो जाती है और वो सीधा कोलाइड करती है यूरेशियन प्लेट से, और अभी भी यूरेशियन प्लेट की तरफ वो मूव कर रही है. और उसके बाद जो सारा जो मूव करने के बाद जो रिवर से सारे डिपोजिशन आते हैं, जो रॉक से सारे डिपोजिशन आते हैं, उससे जियो सिंक्लिन ऑकर्ड होता है और जिसकी वजह से एक सी बनता है जिसको बोलते हैं थेथिस सी. अंडरस्टूड? So thank you so much for wearing this, and I hope you enjoyed this lesson. In the next 2 days, you will get the latter part of this topic, this chapter. This chapter is very very important. So please try to understand. Look, I have cleared the small things which is no not I mean required for the class 9, but all I don't want to hide anything from yourself. So I have said and I have explored to you. So please लर्न ऑल दिस कंसेप्ट, लर्न ऑल दिस थिंग्स. एंड आपको अगर आप जियो सिंक्लिन्स के बारे में यू कैन आस्क फ्रॉम योर सब्जेक्ट टीचर इफ़ ही हैज़ एनी नॉलेज और इफ़ ही वांट्स टू क्लैरिफाई दिस. मे बी मुझे कुछ सीखने को मिल जाए. सो प्लीज़ आप उनसे पूछिएगा, बताइएगा, और आपको भी कुछ पता है गूगल कीजिएगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैव अ लवली वीकेंड अहेड. थैंक यू सो मच एंड दसवीं दानिया, बाय बाय.